Hello everyone, welcome back to Ace the CLAT. This is Ritik Sinha and I help students achieve their academic potential at CLAT exam. I would like to apologize because I was not that active on YouTube from the last 2 or 3 weeks. However, I promise that I would do my best to increase my frequency of posting videos on. Please subscribe to our channel if you haven't already. I'm sure you are going to find this content useful, so press the like button already. Let's get started. The agenda of this video is to help you get all main idea questions correct, whether it is your semi-mock under Ace the CLAT Standard 101 or Premium 101 program, or your mocks from coaching institutes, or the final examination that is now probably not going to be held on 8th of May. It is very likely to get postponed. How to get all main idea questions correct. This is the agenda of the video. This is the first step towards getting success at critical reasoning or reading comprehension questions. I will tell you why this type of questions is relevant. There are 3 reasons for that. I will tell you what exactly does the question setter expect of us while asking main idea questions. There are 3 things, deliverables attached with this as well. And last but not the least, I will talk to you about how to excel or how to get all main idea questions correct in your various examinations. Let's get started. So as far as relevance is concerned, there are 3 points. First of all, main idea questions are a very common type of questions. It is true that in CLAT 2021 only 5 out of 60 questions in critical reasoning or reading comprehension were based on main idea question type. However, पहले एग्जामिनेशन CLAT 2021 के पहले CLAT 2020 में या फिर CLAT 2020 के सैम्पल पेपर्स में a good healthy 8 to 10 questions out of 60 were based on main idea questions. Also please understand with that जहाँ इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चंस एक पैसेज सेट में 2 पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 3 भी पूछे जा सकते हैं. मेन आइडिया टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पूछा जा सकता है पैराग्राफ या फिर किसी पैसेज सेट में एक से ज़्यादा बार नहीं पूछा जा सकता है. ईजी टू गेट करेक्ट. The second relevant point on why you should be working on your main idea question type के skills, उसे कैसे improve करना है, उस पर क्यों काम करना चाहिए आपको. The second reason is that it is easy to get correct. main idea questions generally difficult नहीं होते हैं, बहुत difficult होता है उन्हें difficult बनाना. समझ रहे हो तुम? Okay. And does half of the job. Believe me when I say this, if you get the main idea of a particular passage, then half of your job is done, and it is very very likely that especially in a critical reasoning type of questions you are likely to get at least 4 out of 5 correct. Sometimes it can be 5 as well. However, to be on the safe side, I would say that अगर आपने मेन आइडिया क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, क्वेश्चन नहीं पैसेज के मेन आइडिया को अच्छे से समझ लिया, तो पैसेज में 4 में से 5 में से 4 लाना डिफिकल्ट नहीं रह जाता है. What is the main idea of the passage? If I had to summarize the main idea of the passage, I would put it like this. मेन आइडिया जो है किसी पैसेज का वो एक तरह से ये है कि पूरा जो पैसेज है 300-400 वर्ड का, उसे आपने एक सेंटेंस, एब्सोल्युटली एक सेंटेंस में समराइज़ कर दिया, जिससे कि पैसेज के जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो सब कवर हो गए. ओके. और ऐसा एक भी एलिमेंट आपने नहीं लेके आया जो कि पैसेज में दिया नहीं गया हो या फिर पैसेज से इन्फर नहीं किया जा सकता हो. ठीक है. This is what the main idea of the passage is all about. How is this framed? जो मेन आइडिया के क्वेश्चंस है वो किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं. अगर आप मुझसे ये पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि what is the central argument of the passage. एक तरह का ये हो सकता है. What is the main point of the passage? Which among the following best summarizes the main idea of the passage? Which among the following best depicts the central point of the passage? कहीं पे भी अगर आपको मेन किसी सेंटेंस में मेन आया, किसी सेंटेंस में सेंट्रल आया, ठीक है, सेंटेंस मतलब किसी क्वेश्चन में, है ना, मेन वर्ड आया या सेंट्रल आया या समराइज आया, समझ जाना कि वो मेन आइडिया बेस्ड क्वेश्चन है. इन 90 नहीं लेकिन 80-85% ऑफ केसेस में अगर मेन किसी सेंटेंस में है, किसी क्वेश्चन में है, तो फिर वो मेन आइडिया टाइप का क्वेश्चन ही है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर. ओके. ये सब या फिर मेन पर्पस ऑफ द ऑथर, ये भी मेन आइडिया का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन है. Okay. Secondly, purpose of this question. What is the purpose of this question? What does the question setter expect from the student? Now, when I make a main idea question, I expect only one thing कि passage कि student को कोई passage या फिर author का जो main message था वो मोटा मोटी समझ में आया या नहीं. अगर नहीं आया तो फिर वो उस question में गलती करेगा ही करेगा और फिर पूरे के पूरे passage को
अगर टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपने 5 क्वेश्चन का पैसेज है, अगर 5 क्वेश्चन का पैसेज है, अगर उसमें आपको मेन आइडिया ही सही नहीं हुआ, तो फिर देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी, और आप ये खुद ही चेक करना कि उसमें से 2 या 3 से ज़्यादा सही लाना बहुत मुश्किल हो जाता है 5 क्वेश्चन। ओके, सो द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन सेटर इज दिस इटसेल्फ कि ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि स्टूडेंट को वो पैसेज थोड़ा बहुत भी समझ में आया है क्या। अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो एज आई हैव ऑलरेडी सेड, दिस इज़ अ वेरी ईजी टू गेट करेक्ट ऑप्शन, और इसमें गलती जनरली नहीं होती है। वॉट अबाउट कॉमन रॉन्ग आंसर चॉइसेस? वॉट अबाउट कॉमन रॉन्ग आंसर चॉइसेस? किस तरह के कॉमन रॉन्ग आंसर चॉइसेस होते हैं मेन आइडिया क्वेश्चन में? ये होता है, मैं जैसे क्वेश्चन सेट करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक द बेस्ट ऑप्शन जो मेन आइडिया है। इसके बाद मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ कि एक सब कंक्लूजन पे, ऑथर के एक सपोर्टिंग आइडिया पे, ओके, एक ऑप्शन बना दिया कि वो सेंटेंस जो है वो आप पैसेज से इन्फर तो कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट द मेन आइडिया, बट एक छोटा सेगमेंट, जो पैसेज का एक छोटा सेगमेंट का मेन आइडिया हो सकता है, लेकिन पूरे पैसेज का मेन आइडिया नहीं। ओके, सपोर्टिंग आइडिया इस तरह के अगर ऑप्शंस हो तो गलत होते हैं, और वेरी कॉमन रॉन्ग आंसर चॉइस इज वन अमंग द बेन ऑप्शंस, आई थिंक 2 अमंग और 3 अमंग द बेन ऑप्शंस। ओके, ब्रॉड, ऑथर के पूरे आर्ग्यूमेंट को थोड़ा, मेन आइडिया को ही थोड़ा सा ब्रॉड कर दो रिलेटिवली, एंड फिर उसे ऑप्शन में डाल दो, या फिर थोड़ा सा नैरो कर दो, या फिर कोई एलियन इन्फॉर्मेशन ही डाल दो जो कि आप इन्फर ही नहीं कर सको, और वो देखने में थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन लगे, और स्टूडेंट जो है टेम्प्ट हो जाए उस ऑप्शन को मार्क करने के लिए, या फिर और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए कि उसे अगर पहले लग भी रहा हो कि मेन आइडिया जो सही है वो ही सही है, हाउएवर उसको देख के उसका दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज, राइट। दिस इज अबाउट व्हाट मेन आइडिया पैसेज, जो क्वेश्चन सेटर वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, ऑल राइट, एंड किस तरह से मेन आइडिया क्वेश्चंस को रॉन्ग आंसर चॉइसेस को ध्यान से रखते हुए, किस तरह से रॉन्ग आंसर चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए मेन आइडिया क्वेश्चन को करेक्ट करना। ठीक है, लेट मी गिव यू अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ठीक है ऋतिक या भैया, ये आपकी स्ट्रैटेजी या फिर ये आपकी ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि मेन आइडिया क्वेश्चन कहते कैसे हैं, कॉमन रॉन्ग आंसर चॉइसेस क्या होते हैं, किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं ये क्वेश्चंस। एक बात मुझे बता दो, व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू वर्क ऑन दिस टॉपिक? देयर आर 2 स्ट्रैटेजीज दैट आई हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई। वन is a good one and second one is a very good one, and if you had to ask me best strategy कौन सी है, मैं ये बोलूँगा दोनों आप एम्प्लॉय करो, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा ज़्यादा हेल्प कर रहा है आपको, या फिर आज तक कौन सा ज़्यादा हेल्प करते आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉपिक टेस्ट। खान अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे देर आर सम टॉपिक टेस्ट ऑन द टॉपिक कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन नाम के एक टॉपिक पे टॉपिक टेस्ट हैं खान अकेडमी के LSAT टेस्ट प्लेटफॉर्म पे। खान अकेडमी क्या है ये जानना है तो फिर ऊपर एक आई बटन पे मैं एक वीडियो छोड़ दूंगा जिसमें मैं पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे क्लैट की प्रिपरेशन खान अकेडमी के LSAT टेस्ट प्लेटफॉर्म के थ्रू करनी है। ओके, तो वहीं से जाके आपको कंक्लूजन पे काम करने हैं, और हैंड्स डाउन द बेस्ट स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक यू टू द ब्राउज़र। हम लोग रोज़ सारे क्लैट एस्पिरेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आप रोज़ एटलीस्ट 1 घंटे से 1.5 घंटे न्यूज़पेपर्स पढ़ें, राइट। जब भी न्यूज़पेपर के ओपिनियन पेज में खास करके एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, सो सबसे पहले एक मेटाफोरिकल टाइटल होता है पैसेज का, राइट। सेंटर ऑफ द डिबेट, सेंटर स्टेट रिलेशंस, या फिर आप कहीं देख लो तो ओके, जैसे कि यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस, सेंटर ऑफ द डिबेट, ये पूरा पैसेज है। किस तरह से करना है आपको, आप यह ध्यान में रखना कि ये जो एक सेंटेंस है ये हर पैसेज में होता है, खास करके एडिटोरियल पेज जो किसी भी न्यूज़पेपर के ओपेड पेज या एडिटोरियल पेज के लेफ्ट हैंड कॉलम में होता है। ठीक है, ये एक सेंटेंस दिया होता है जैसे कि वो जो कि रिप्रेजेंट करता है द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इटसेल्फ। जैसे कि इस एडिटोरियल को आप पूरा पढ़ लो, ठीक है, और फिर देखना कि जो मेन आइडिया है ना, दैट इज क्लोजेस्ट टू दिस ऑप्शन। ओके, अ कन्वेंशन ऑफ सेम्स शुड नॉट बी ड्राउंड इन द पोलेमिक ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये मेन आइडिया है पैसेज का, और इसी पे पूरा पैसेज बेस्ड है। ओके, जो पैसेज में दिए हुए फैक्ट्स, एविडेंस हैं, ये सब कुछ इसी एक मेन आइडिया को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक बात और समझो, करना क्या है। ज़्यादातर लोग न्यूज़पेपर जो है वो ऑफलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। करना क्या है,
या तो खुद से या तो अपने किसी सिबलिंग को या फिर पेरेंट्स को या फिर किसी को भी बोलो कि न्यूज़पेपर खोलने से पहले ही उन्हें बोलो कि ये जो सेंटेंस है ना, इसे वो पेंसिल से स्क्रैच आउट कर दें, ऐसा कर दें कि वो दिखे नहीं। नहीं तो अगर बहुत डिसिप्लिन्ड हो तुम, तो अपने कुछ खुद ही फिंगर्स यूज़ कर सकते हो, डायरी यूज़ कर सकते हो, नोटबुक यूज़ कर सकते हो, पेन यूज़ कर सकते हो। पेन तो बहुत पतला हो जाएगा, लेकिन कुछ भी सामान यूज़ कर सकते हो, है ना, जिससे कि वो सेंटेंस जो है वो छिप जाए। और फिर क्या करना है, तुम्हें पूरे पैसेज को पढ़ना है और अपना मेन आइडिया जो तुम्हें लगे, ओके, कि पूरे पैसेज को एक सेंटेंस में मुझे समराइज़ करना होता, तो वो कैसे करता मैं। ध्यान रखना कि ये जो स्ट्रैटेजी है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गेटिंग सक्सेस एट मेन आइडिया क्वेश्चंस, बट गेटिंग सक्सेस एट क्रिटिकल रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस ओवरऑल। ये काम बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको इन द नॉट जस्ट इन द लॉन्ग रन, बट अगर आप ये मतलब ये ऐसी स्ट्रैटेजी ना कि 1 हफ्ते 10 दिन भी आपने रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करी 2-3 पैसेजेस के साथ, तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी इन क्वेश्चंस पे पकड़ जो बोलते हैं ना, ग्रिप, वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नॉट जस्ट इन, एज आई सेड, नॉट जस्ट इन मेन आइडिया क्वेश्चंस, बट ऑल्सो इन इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ऑल्सो इन इवेल्युएटिंग द आर्ग्यूमेंट टाइप क्वेश्चन जैसे स्ट्रेंथ एंड वीकेंड, ये सब। ओके, क्या करना है, पूरे पैसेज को पढ़ना है, इसे ढके हुए रखते हुए, है ना, या फिर छिपे हुए रखते हुए, एंड फिर अपने एक सेंटेंस में पूरे पैसेज को समराइज़ करना है और फिर कंपेयर करना है कि कैसे मेरा समरी जो है पैसेज का या मेरा मेन आइडिया जो है पैसेज का, वो कितना ज़्यादा रेलेवेंट है, कितना ज़्यादा एक्यूरेट है एज फार एज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर इज़ कंसर्न्ड। ये पैसेज ऑथर ने लिखा है ना, एडिटर्स ने लिखा है द हिंदू के, तो यही बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है मेन आइडिया। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो अगर, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो. I would be very happy to help. Okay, I will see you in the next one. Till then, goodbye, take care, and all the best. Subscribe to the channel if you haven't already. I already said that you are very likely to find this video useful. Please hit the like button and also share your feedback in the comment section of the video. Thank you and all the best.